Remember this, that each one of us, young and old, इसे स्मरण रखें कि हम में से प्रत्येक युवा और बूढ़ा, your first step that you ever made in your life, someone had to lead you. आपका पहला कदम जो आपने अपने जीवन में उठाया, किसी ने आपकी अगुवाई की। That's right. ये ठीक बात है। And your last step you ever make, someone will be leading you. आपका अंतिम कदम जो आप लेंगे, कोई अगुवाई कर रहा होगा। Someone has to lead. किसी को अगुवाई करनी है। God has likened us unto sheep. परमेश्वर हमें भेड़ के समान पसंद करता है। And if anyone knows about raising sheep and the nature of sheep, और यदि कोई भी जो जानता है जो भेड़ों को पालने के बारे में और उनके स्वभाव के विषय में, why, you know that a sheep cannot find his way around. He has to be led. क्यों आप जानते हैं भेड़ अपना मार्ग नहीं ढूंढ सकती, उसे अगुवाई की आवश्यकता होती है। Even in the slaughter pens, we find that they bring the sheep there and he's led up into the slaughter by a goat. यहाँ तक कि कसाई खाने में हम देखते हैं कि वे भेड़ को वहाँ लाते हैं और काटने के लिए उसकी अगुवाई बकरी के द्वारा की जाती है। A goat leads them up. एक बकरी उन्हें वहाँ लाती है। Then when he gets up to the end of the chute, he jumps out. The sheep goes right on into the slaughter. और जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो बकरी कूद जाती है और भेड़ सीधी कटने के लिए बढ़ जाती है। So we find that a sheep cannot find his way around. इसलिए हम पाते हैं कि भेड़ अपना मार्ग नहीं ढूंढ पाती। I remember an experience I had with one time. मुझे एक अनुभव स्मरण है जो कि मुझे एक बार हुआ। I was a state game warden in Indiana, and I'd been out in the field. मैं इंडियाना में शिकार का देख-रेख करने वाला था। And I heard something, a most pitiful cry. और मैंने बहुत ही दर्द भरी चिल्लाहट सुनी। And it was a little lamb had lost his mama. और ये छोटा मेमना था जो अपनी माँ को खो चुका था। And he couldn't find his way to her, and the mother couldn't find her way to the little lamb. और वो अपनी माँ तक पहुँचने का मार्ग नहीं ढूंढ पा रहा था और उसके बच्चे तक मार्ग नहीं ढूंढ पा रही थी। And I picked the little fella up, and how quiet he laid against me. मैंने उस छोटे बच्चे को उठाया और वो मेरे पास वो बिल्कुल शांत था। And I went along there, my hands holding the little fella and crying. मैं गया, मेरे हाथों में वो छोटा बच्चा था और चिल्ला रहा था। And as I heard him, how he just snugged his little head down against me. और मैंने ऐसा सुना कि जैसे कि वो अपना छोटा सिर मुझसे सटाकर हिला रहा था। It seemed like he knew that I was going to help him. और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वो जानता था कि मैं उसकी सहायता कर रहा हूँ। I thought, oh, Rock of Ages, cleft for me, pick me up in the arms of the Lord Jesus. मैंने सोचा, ओह, युगों की चट्टान, मेरे लिए दरार, मुझे प्रभु यीशु के हाथों में उठा लें। Just be content, as I know I'm going to go home to be with my loved ones. वैसे ही यत्नशील जितना मैं जानता हूँ, मैं अपने प्रियजनों के पास घर को जा रहा हूँ। I thought at the end of my life's journey, just bring me in your arms, Lord, like that. मैंने सोचा अपने जीवन की यात्रा के अंत में प्रभु मुझे भी इसी प्रकार अपनी बाहों में ले लेना। And I know I'll be carried across the river then on the other side. क्योंकि मैं जानता हूँ मैं नहीं नदी के पार ले जाया जाऊंगा, वहाँ उस पार, where there'll be no sorrows and sicknesses and things, and I'll be with the loved ones that I've loved. जहाँ दुख और बीमारी और आदि आदि कुछ नहीं होगा, मैं जिन्हें प्रेम करता हूँ उनके संग होऊंगा। And if you study nature, there's a great thing in nature. और यदि आप प्रकृति का अध्ययन करें तो प्रकृति में महान चीजें हैं। Everything that I look at and God has made, He's the author of nature. हर चीज जो मैं देखता हूँ और परमेश्वर ने उसे बनाया है, वो प्रकृति का रचने वाला है। Nature runs in continuity. All nature runs about the same. प्रकृति निरंतरता में चलती है, सारी प्रकृति ऐसी ही चलती है। You notice everything, as I have said, I believe last evening, that nature testifies of God. आप हर चीज पर ध्यान दें, जैसा कि मैंने कहा है बीती सांझ, वो प्रकृति परमेश्वर की गवाही देती है। If you never had a Bible, you can still watch nature and know that this Bible is the truth. यदि आपके पास कभी बाइबल नहीं रही, फिर भी आप प्रकृति को देख सकते हैं और जानते हैं कि ये बाइबल सत्य है। I had the privilege of being around the world. मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने संसार का भ्रमण किया।
I've read the different phases and I've seen different religions. और मैंने विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया और मैंने भिन्न भिन्न धर्म देखे, The Mohammedans, and I've read the Quran मुसलमान, और मैंने कुरान पढ़ी, and seen the Sikhs, the Jains, and Mohammedans, and the Buddhas, and what more. और सिखों को देखा, जैन और मुसलमान और बुद्ध मानने वाले को देखा, क्या नहीं। But yet each one of them, they have a philosophy and a book of creed and a book of laws and so forth. परंतु फिर भी उनमें से प्रत्येक की उनकी एक शिक्षा है, मत्सार की एक पुस्तक और नियमों की पुस्तक और आदि आदि। But our Bible is the truth, and our God is the only one that is right. परंतु हमारी बाइबल सत्य है और हमारा परमेश्वर ही केवल एक है जो सही है। Because each one of them has to point to a grave somewhere where their founder is still laying. क्योंकि उनमें से प्रत्येक का संकेत कब्र की ओर है, कहीं जहां उनका संस्थापक रखा है। But Christianity points to an open tomb and can live in the presence of the one that was put in there. परंतु मसीहत खुली कब्र की ओर संकेत करती है और उसकी उपस्थिति में रह सकते हैं वो जो वहां रखा गया था। He is alive. It's not a God that was, it's a God that is. वो जीवित है, ये वो परमेश्वर नहीं जो था, ये वो परमेश्वर है जो है। Not a I was or I will be, but I am. न कि मैं था या मैं होऊंगा, परंतु मैं हूँ। And all nature runs in continuity, as I've said, talking on our church ages. और सारी प्रकृति निरंतरता में चलती है, जैसा मैंने अपनी कलीसियाई कालों पर बात करते हुए कहा। Which we have the books now is coming out, about my writing of the church ages. जिसकी पुस्तक अब हमारे पास है जो आ रही है, मैंने क्यों कहा कलीसियाई कालों पर अपने लेखों में। And how that we see the church, how it's matured, come up just exactly like all nature does. और कैसे हम कलीसिया को देखते हैं, ये कैसे परिपक्व हुई, ठीक वैसे ही आई जैसे सारी प्रकृति करती है। And we was talking the other day about how the sun rises in the morning. उस दिन हम बातें कर रहे थे कि कैसे सूर्य प्रातः उदय होता है। It's a little baby, real weak, not much strength to it at all. ये एक छोटा बालक है, कमजोर, इसमें बिल्कुल भी अधिक बल नहीं है। And as the day goes on, it gets stronger, stronger. और जैसे दिन बढ़ता है, ये मजबूत होता जाता है, मजबूत। About 8 o'clock, it enters school like a young boy or young girl. And then about 11 o'clock, it's out of school and it's ready for its service. 8 बजे के लगभग ये विद्यालय में जाता है जैसे एक युवा लड़का या युवती, और फिर लगभग 11 बजे ये विद्यालय से बाहर और ये अपनी सेवा के लिए तैयार है। And then across till about 3 o'clock, it changes into middle life, into old age, and then dies in the afternoon. और फिर 3 बजे तक ये बदलता है अधेड़ बूढ़ी आयु में, और दोपहर बाद ये मरता है। Is that the end of the sun? No. क्या ये सूर्य का अंत है? नहीं। It comes back the next morning to testify that there is a life, a death, a burial, a resurrection. See? ये फिर अगली प्रातः आता है ये गवाही देने को कि जीवन, मरण, गाड़ा जाना और एक पुनरुत्थान है। समझे? We watch the trees, how they move and what they do. हम पेड़ों को देखते हैं कि वे कैसे बढ़ते हैं और वे क्या करते हैं। I was some time ago down in Kentucky. I like to squirrel hunt. कुछ समय पहले मैं केंटकी में था। मैं गिलहरी का शिकार करना पसंद करता हूँ। I went out in the fall of the year there to squirrel hunt with a friend of mine. और मैं वर्ष के अंत में वहाँ अपने मित्रों के साथ गिलहरी के शिकार पर जाता हूँ। And it's got very dry. और ये बहुत सूख गया। And anyone ever hunted gray squirrel know that how hard it is to slip up on them when the leaves. और कभी किसी ने सिलेटी गिलहरी का शिकार किया है, जानते हैं कि ये कितना कठिन है उन्हें चिन्हित करना जब पत्तियां। Just crack one and Houdini is an amateur escape artist to those fellows. How they can get away. बस एक लें और होदिनी एक अनाड़ी भगा देने वाला कलाकार उनके लिए, वे कैसे जा सकते हैं। And then trying to shoot eye shots at 50 yards. और फिर 50 गज से बिल्कुल बिंदु पर गोली दागने का यत्न करना। It takes some good hunting to get your limit in a day.
इससे कुछ अच्छा शिकार होता है कि अपने दिन की सीमा को पाएं। So Mr. Wood, a friend of mine, a converted Jehovah Witness, was with me. श्री वुड मेरे एक मित्र यहोवा विटनेस से मत परिवर्तित मेरे साथ थे। And he said, I know a farm over here where there's a man that's got a lot of... और उसने कहा मैं जानता हूँ यहाँ एक फार्म है, वहाँ एक व्यक्ति जिसके पास बहुत ही, We call them there hollers. हम वहाँ उन्हें शोर करने वाला कहते हैं। How many know what a holler is? कितने जानते हैं कि हॉलर क्या होता है? Well, what part of Kentucky you from anyhow? See? आप केंटकी के कौन से भाग से हैं? जो भी हैं, समझे? And that's where I'm from. और यही जहाँ से मैं हूँ। Like here, one of the chapters not long ago, I have to tell this to Brother Williams' name. Brother. जैसे यहाँ एक अध्याय में अधिक समय नहीं हुआ, मुझे ये भाई विलियम्स को बताना था और उन भाइयों को। They said we will now stand and sing the national anthem. उन्होंने कहा अब हम खड़े होंगे और राष्ट्रीय गान गाएंगे, राष्ट्रीय गान। And I said, for my old Kentucky home. और मैंने कहा मेरा अपना पुराना केंटकी का घर। Nobody joined in with me, so that's the only anthem I knew. किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, यही राष्ट्रगान था जो मैं जानता था। And so we was all right, sir. और इसलिए हम थे, अब हम थे। ठीक है श्रीमान। Please have prayer for a lady now is bleeding at the nose. कृपया एक प्रार्थना करें, क्योंकि यहाँ एक महिला है जिसकी नाक से खून आ रहा है। Let us pray. हम प्रार्थना करें। Dear God, I ask you, Lord, Thou art the great healer. प्रिय परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि तू एक महान चंगा करने वाला है। And I ask that your grace and mercy will touch this dear woman just now and stop that blood. और मैं आपसे मांगता हूँ कि आपका अनुग्रह और दया इस महिला को अभी छू ले और लहू को रोक दे। As a believing people who assemble together, एक विश्वासी लोगों के समान जो यहाँ एक साथ जमा हुए हैं। the lady has come here to enjoy the word of the Lord and the fellowship of the people. ये महिला यहाँ प्रभु के वचन का आनंद लेने यहाँ आई है और लोगों के साथ संगति करने को। And I ask you, Lord, just now to rebuke the enemy and stop the blood. प्रभु, मैं आपसे मांगता हूँ इसी समय शत्रु को झिड़कें और लहू को रोक दें। In Jesus Christ's name, amen. And we believe it. We believe it. यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हम इसका विश्वास करते हैं।